আপনারা দেখছেন নিউজ 9, ভয় পাই না, এগিয়ে চলি। রবিবার রাতেই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। ফের একবার তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে শোনা গিয়েছে সুকান্তকে। যান, দেখা করুন, জুতো বুতো যেন না খান। এখন তো যেখানে ওনারা নেতারা যাচ্ছে জুতো খাচ্ছেন, তো জুতো যেন না খায় সেটা দেখতে হবে। আবার সেই জন্য সমস্ত চাকরি প্রার্থীদের পা থেকে জুতো খুলিয়ে অন্য জায়গায় সরানো না হয় সেটাও দেখতে হবে। পাহাড়ের জন্য কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী একাধিক ঘোষণা হচ্ছে, এদিকে সমতলে যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা হাজার দিন ধরে বসে আছে, বিয়ে পাচ্ছে না। দেখুন, পাহাড়ে জিটিএ চলছে। জিটিএ মানে আপনি সেখানে টাকা পাঠাবেন, ওই টাকা সাইফন হয়ে আবার চলে আসবে কলকাতায় নেতাদের পকেটে। কিছুটা পাহাড়ের কিছু তৃণমূলের নেতা আছে, তারা ভাগ পাবে, আর কিছুটা কলকাতার নেতাদের কাছে চলে আসবে। আর এই কল্পতরু প্রকল্পের ওরকম না হয়ে যায় যেন পুরোটাই কল্পতরু না হয়ে যায়, শেষে কোনোটাই হয়তো জনতা পেল না, শুধু ঘোষণাই সারালো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো রেলমন্ত্রী থাকা অবস্থায় বহু প্রজেক্ট ঘোষণা করে গেছিলেন, কটা হয়েছে? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, সেখানে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীর অত সাহস নেই না দেখা করতে। দেখুন, সাহসের বিষয় নেই, যে কোনো মুখ্যমন্ত্রী দেখা করতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী দেখা করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো কোন ছাড়, পিনারাই বিজয়ন আমাদের আইডিওলজিক্যালি অপোজিট দিকে বিলং করেন, উল্টো দিকের মানুষ। তিনিও সময় চাইলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সময় দেন। এটা ফেডারেল স্ট্রাকচার, এই গণতন্ত্রের এই নিয়মগুলো দিল্লিতে অ্যাটলিস্ট চালু আছে। 19 ডিসেম্বর আবার বিরোধীরা বৈঠকে বসছে। না, কোনো অসুবিধা নেই, এখানে কুস্তি করুক, ওখানে দোস্তি করুক, বিভিন্ন জায়গায় মস্তি করে বেড়াক, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। দেশের জনগণ তারা অলরেডি ঠিক করে নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে। 2024 নরেন্দ্র মোদী ওয়ান্স মোর। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ এখনো 350 কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে, এখনো গোনা শেষ হয়নি। না, ইন্ডি জোট তো, এটা তো সহজে তো শেষ হবে না। যত টাকা টানবেন তত বেরোবে। তৃণমূল নেতাদেরও কি টাকা শেষ হবে নাকি যদি গোনা শুরু হয়? এখনো তো যেটুকু ধরা পড়েছে আপনারা কিছুই দেখতে পাননি, হিমশৈলের চূড়াও না ওটা আর কি। ইন্ডিয়া জোটেরও কেউ এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করছে না কংগ্রেসের পাশাপাশি। আমি তো মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম, আপনি একসময় বঙ্গারু লক্ষ্মণকে 1 লাখ টাকা নিতে দেখে সরকার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। আজকে আপনার ইন্ডি জোটের একজন রাজ্যসভার সাংসদ নেতা, যিনি রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রাতে রাহুল গান্ধীর সাথে পায়ে হেঁটেছিলেন, সেই নেতার গোডাউন থেকে 350 কোটি এবং কাউন্টিং গোয়িং অন, এখনো শেষ হয়নি, মানে চলবে। সেই চলবে তো 350 কোটি টাকা উদ্ধার হয়ে গেছে। তাও মুখ্যমন্ত্রী রাগ কাটছেন না, সততার প্রতীক, মুখে কিছু বলছেন না। ব্যাপারটা কি, আমরাও সেটা বুঝতে পারছি না। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যসভার সাংসদ ধীরজ সাহুর বাড়ির আয়কর দপ্তর হানা দেয় এবং এখনো পর্যন্ত প্রায় 250 থেকে 300 কোটি টাকার কাছাকাছি নগদ উদ্ধার হয়েছে। এরপরেই বিজেপির একাধিক হেভিওয়েট নেতারা কংগ্রেসকে কার্যত তুলোধনা করতে থাকে। অনেকে দাবি করেন এই টাকা গোপন সূত্রে গান্ধী পরিবারে গিয়ে ওঠে। এইসব অভিযোগের পরে দেশের রাজনীতি কার্যত তোলপাড়। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहां से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहां से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूंगी गुस्सा आएगा। 300 करोड़ हो चुका है, 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती, और गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं उस समझ से आपको ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरण गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिए, और यही सिलसिला जो है वो सामने आया है। अभी जो कुछ चीजें पकड़ी गई, खास तौर पे धीरज साहू के यहां से,
और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट কংগ্রেসকে পরাজিত করে ছত্তিশগড়ে জয়লাভ করেছে বিজেপি। 4 রাজ্যে বিধানসভা ভোটে 3 রাজ্যেই গেরুয়া ঝড় উঠেছে। তবে 40-এর লোকসভায় কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না বিজেপি দল। 3 রাজ্যে বিধানসভার ভোটের পর যাতে লোকসভাতেও আশানুরূপ ফল পায় সেদিকে নজর রেখেছে গেরুয়া শিবির। তাই ছত্তিশগড়ে আদিবাসী মুখ বিষ্ণু দত্তকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार के जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कल पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद वोट सेरेमनी होगा, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है। उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। जी, कई नाम चले हुए, फाइनली आज विष्णुदेव साय जी को आपके क्षेत्र में सरगुजा से सीएम बना दिया गया। देखिए, मीडिया में जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद की आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन। জানুয়ারি মাসে উদ্বোধন হতে চলেছে অযোধ্যার রাম মন্দির। গোটা দেশবাসী তার অপেক্ষায়। হাতে আর 1.5 মাসও বাকি নেই, তাই জোর কদমে এখন মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে। শনিবার সকাল সকাল প্রকাশ্যে এসেছে মন্দিরের গর্ভগৃহের ছবি। মন্দিরের গর্ভগৃহের ছবি সামনে আসতেই ভাইরাল হয়েছে সমস্ত ছবি এবং ভিডিও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভা ভোটের আগে এই রাম মন্দির উদ্বোধন করতে চলেছেন।
হাওড়া পুরসভার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি। কেক কেটে মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কর্মসূচি বিজেপি নেতাদের। গণতন্ত্রের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলেন কেক কেটে। এই অভিনব প্রতিবাদ নিয়ে কি বললেন বিজেপি নেতা উমেশ রায়, আসুন দেখে নেওয়া যাক। এটাই তো ওদের দলের কৃষ্টি আর সংস্কৃতি, মৃত্যুকে পালন করছে কেক কেটে। একগুচ্ছ নতুন চমক নিয়ে শুরু হয়েছে এবারের বিগ বস। এই বিগ বসেই ছিলেন আইনজীবী সানা রইস খান। বিগ বস থেকে এলিমিনেট হয়ে গিয়েছেন সানা। শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানের হয়ে আদালতে লড়েছিলেন সানা। অঙ্কিতা লোখান্ডের স্বামী ভিকি জনের প্রেমে পড়েছেন সানা। সানা স্পষ্ট জানালেন ভিকির সঙ্গে সব থেকে ভালো বন্ডিং তার। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়া যে আর কিছুই নেই তাও স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন তিনি। दिखाई गई जहाँ पर आप विकी का हाथ पकड़ रहे थे और इस बात को क्लियर नहीं किया गया, बट सलमान सर ने कई बार ये बात उठाई थी वीकेंड का वार में, तो लोगों को ये लगता है कि क्या आपको विकी के लिए फीलिंग्स थी? मुझे दिस इज एब्सोल्युटली जब आप घर पे गई तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उसके? एक मिनट, लेट हर कंप्लीट द आंसर ऑफ हर क्वेश्चन। नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है, पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब जो पर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीज़ी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीज़ी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीज़ी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विथ पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली विथ माई लाइक रिगार्डिंग माई इक्वेशन विथ एवरीबडी जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे। तो मेरी सरप्राइज़ कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने 3rd वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ थे। और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट, तो मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज़ ट्रस्ट मी आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट येस मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी। इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे। पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी, कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करते थे, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी कुछ, कभी वहाँ पे वैसा माहौल है ना, वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है। आई बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं बहुत मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि
मैं कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे मैं मानूंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ ये मतलब मुझे ये चीज़ें समझने में फिर थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है, दे आर ऑल माई कंपेटिटर्स। तो वो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड ख़राब हो, मेरे बॉन्ड टूटे, ये वो। तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन लेती थी, मुझे लगता था, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें। जो वायरल हुआ था आपका एग्जैक्टली वही कुछ हुआ था या कुछ प्रोमो में या जो भी अलग कुछ तरीके से दिखाया गया? मतलब मुझे जितना याद है, मैंने अभी तो देखा भी नहीं ऑनेस्टली, मैं सो रही थी दोपहर के 4 बजे तक। मुझे जितना याद है, अभी मैंने वो क्लिप नहीं देखी, पर मुझे जितना याद है उन्होंने मेरा मतलब वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी कि तुम उसके साथ जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो, जैसे विकी के साथ, तो बोल रहे थे तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में, ये वो। तो मैंने बोला था उन्हें कि हाँ, पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है ऐसा नहीं कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा दिन, समथिंग लाइक दैट, सम कॉन्वर्सेशन अकर्ड लाइक दैट। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, ये वो, ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है। फिर समवेयर मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी, एंड देन हाँ फिर कुछ ऐसा हुआ था हैंड जेस्चर। রানী মুখার্জি তার কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে পার্টি রেখেছিলেন। বি টাউনে পার্টি মানেই চাঁদের হাট। খুদে তারকার বার্থডেতে অনেক বলি তারকাদের তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসতে দেখা গেল, তাই অতিথিদের তালিকায় ছিলেন খুদেরা। আপনারা দেখছেন নিউজ 9, ভয় পাই না, এগিয়ে চলি।